Good morning, students. How are you? You know very well which chapter is going on. The Revolt of 1857. In the previous video, we have discussed about what were the causes of the Revolt of 1857, political, social, economic causes, military causes, and after that we have discussed immediate cause also. In the immediate cause, what was the introduced by the British Army? Enfield rifle, and the Indian Sipahis refused to. We will not use that cartridge. And after that, who opposed in the first Barakpur army? 34th Infantry Regiment, who was Mangal Pandey. After that, he was captured by the Britishers and hanged. After that, that revolt spread to Barakpur to Meerut on 10th May 1857 and from Meerut to Delhi. And where they declared the Bahadur Shah Zafar as their Mughal emperor to the leader. We were discussing about and where that revolt extend, यानी कि revolt कहाँ फैला. We have discussed about the Delhi and Kanpur area also in the detail. Today we will discuss about first Jhansi and after that Lucknow. First we will see Jhansi. In Jhansi, who led the revolt? Rani Lakshmibai with Tatya Tope. Who was the Tatya Tope? Tatya Tope was the commander of Rani Lakshmibai. Before that, why Rani Lakshmibai was not happy with the Britishers? Firstly, we understand the history. She became widow at the age of 50. But after that, she didn't accept the British atrocities and challenged them. How? यानी कह रहे हैं कि she became widow at the age of 15. And after that, she didn't accept the British atrocities. British के अत्याचार थे उनको उन्होंने सहन किया and challenge them और उनके ऊपर आवाज उठाई, challenge किया. How? Because after the death of her husband, she had adopted a son, but then Governor General Lord Dalhousie refused to give the rule of Jhansi as the adopted child, and Jhansi was annexed to the British Empire. इसे झांसी को कहाँ मिला लिया गया? British Empire में मिला लिया गया. When the revolt started against the British, Rani Lakshmibai also participated in it, and she fought very bravely, courageously. But yet she was defeated by the English forces. She fought very bravely and courageously against the Britishers. After that, she defeated by the English forces. How? Due to the traitors in her own camp. Traitors होता है राजद्रोही या we can say that the देशद्रोही. Loyal नहीं होना अपने मालिक के प्रति. And after that, the Rani Lakshmibai ran away to Kalpi. रानी बाई वहां से झांसी से कहाँ चली गई? कल्पी. The English journal and who followed that? English journal Sir Hugh Ross. तो इस इंग्लिश यहाँ पर मेन इंपोर्टेंट है कि इंग्लिश जर्नल कौन था यहाँ पे जो रानी लक्ष्मी की बाई के साथ इन्होंने रिवोल्ट किया? सर ह्यू रोज. फॉलोड बोथ द रानी ऑफ झांसी एंड तात्या टोपे. फ्रॉम कल्पी सी वेंट टू ग्वालियर. ये कह रहे हैं ना जैसे ही ब्रिटिश फोर्सेस ने इसको हराया तो झांसी से कहाँ चली गई? कल्पी. कल्पी से क्या? फ्रॉम कल्पी सी वेंट टू ग्वालियर. और कल्पी से कहाँ चली गई? ग्वालियर में. एंड सीज इट फ्रॉम, सीज का मतलब ना छीन लेना, कैप्चर कर लेना. इट फ्रॉम सिंधिया, ग्रेट सपोर्टर ऑफ द ब्रिटिश. और सिंधिया क्या थे उस समय? किसके सपोर्टर थे? ब्रिटिशर्स के. उन्होंने उनसे क्या कर लिया? वहां पर पहुंचकर कल्पी से ग्वालियर वहां अपने कब्जे में ले लिया ग्वालियर फोर्ट को. आफ्टर बट Rani Lakshmibai was defeated and killed in June 1858. She fought very bravely, courageously. बहादुरी से लड़ते हुए वो कब वीर गति को प्राप्त हो गई युद्ध भूमि में? Killed in June 1858. तात्या टोपे escaped to the jungles. और तात्या टोपे क्या हुआ? तात्या टोपे escaped to the jungles of central India and continued to fight a guerrilla war. सेंट्रल इंडिया के फॉरेस्ट में चले गए थे तात्या टोपे एंड वहां से वो छुपकर हिडन वॉरफेयर यानी छुप छुपकर विद द सपोर्ट ऑफ मेनी ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स, पीजेंट्स और ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ मिलकर वो उनके ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करते. बट आफ्टर दैट ही वाज आल्सो कैप्चर्ड, ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859. और कौन से ईयर में तात्या टोपे मारे गए? अप्रैल 1859 में. बट सर ह्यू रोज ने रानी लक्ष्मीबाई को कितने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है? The best and bravest military leader of the rebel. यानी कि जो ये रिवोल्ट हुआ उसमें बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर, जो मिलिट्री लीडर है क्योंकि उसने बहादुरी से, और कितनी एज थी जब वो विडो हुई उस समय 15 इयर्स तक, मतलब इसके बावजूद भी उन्होंने ब्रिटिशर्स के चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया
मतलब उनकी एट्रोसिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, उनके खिलाफ आवाज उठाई और लॉर्ड डलहौजी ने मना कर दिया कि अपनी जो अडोप्टेड सन है उसको हम झांसी पर नहीं बैठने देंगे, झांसी की गद्दी पर नहीं बैठने देंगे, उसको रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया गया। तो व्हेन द फोर्ट यानी कि व्हेन द रिवोल्ट स्टार्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश, रानी लक्ष्मीबाई also participated in it and she fought very bravely and courageously. So these are the points we have discussed about the Jhansi. So describe, that is the most important in most of the computational exam that question asks. Who said these words regarding the Lakshmi Bai, the best and bravest military leader of the rebel? So Sir Hugh Ross. Now we will discuss about the how the revolt started. And in Lucknow, who led the revolt? Begum Hazrat Mahal led the revolt. She was assisted by the साथ किसने दिया? मौलवी अहमदुल्ला साहब। क्यों यहाँ पर मतलब बेगम हजरत महल ने लैंड किया, रिवोल्ट को क्यों स्टार्ट किया? अब इससे पहले पूरी स्टोरी हम समझते हैं। 1801 में अवध के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ क्या हुआ था? सब्सिडायरी अलायंस की तरह, यानी कि जो भी ट्रेजरी से पैसा लेना है वो यूज कर रहे थे, ब्रिटिश यूज कर रहे थे फॉर देयर ओन बेनिफिट। यानी कि वहां पर जो नवाब लोग क्या था? सेंट होंगे, यानी कि नाम आते थे, ऑल द पावर्स यूजिंग बाय ब्रिटिशर्स। नाउ व्हाट दे वर थिंकिंग कि वी शुड टेक ओवर द डायरेक्ट कंट्रोल टू अवध। उन्होंने सोचा कि हमें डायरेक्ट अब किसके ऊपर अब कंट्रोल कर लेना चाहिए? अवध पर। तो वहां पर उस समय कौन चीफ कमिश्नर था? हेनरी लॉरेंस। उसके नेतृत्व में क्या हुआ? ट्रूप्स आगे बढ़ी और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। तो 1856 में ये क्वेश्चंस भी आता है कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करें कि कौन सी ऐसी टेरिटरी थी जो ब्रिटिशर्स के द्वारा लास्टली एनेक्स की गई? कौन सा था? अवध। 1856 में अवध को ले लिया गया। अब क्या क्या जो वहां पर नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह को क्या किया गया? एग्जाइल करके कहाँ भेज दिया? कलकत्ता। और जो वहां से जो सिपाही थे, जो सोल्जर्स थे, अब उनको क्या हुआ? रिसेंटली दे वर एंगर्ड विद द ब्रिटिशर्स, लखनऊ की तरफ बढ़े वहां की तरफ। तो धीरे धीरे क्या हुआ? और उसी समय क्या हुआ? जो नवाब के बेटे थे, 14 years old son Genghis Khan, the son of the deposed Nawab Wajid Ali Shah, was made the Nawab of Awadh। यानी कि 1856 में वाजिद अली शाह को क्या कर दिया? एग्जाइल कर कलकत्ता भेज दिया गया। तो उनकी जगह पर किसको नवाब बनाया गया? जेंगिस खान। दैट टाइम वाज 14 years old। तो भी वहां के जो सोल्जर्स थे उनको भी काफी गुस्सा आया हुआ था इस चीज के ऊपर। और उस समय कौन से ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इस रिवोल्ट में सपोर्ट किया था? ब्रिटिश ऑफिसर्स जिसमें हैवलॉक, कैंपबेल एंड जेम्स नाइट। कैंपबेल, हैवलॉक, कैंपबेल एंड जेम्स नाइट। नाउ द सिपाहीज रोज इन रिवोल्ट ऑन 13th May। सिपाहियों ने यहाँ पर रिवोल्ट कब स्टार्ट कर दिया? 13th May 1857। They surrendered the residency where all Europeans had taken refuge. Then began the long siege by the Sipahis for 8 months. The Sipahis were inspired by Begum Hazrat Mahal and Maulvi Ahmadullah. Sir Henry, यहाँ पर Henry Lawrence died during this period. The fate of the revolt was decided by the failure of the Sipahis in Awadh, so they were in number. They failed to remove the British. हालांकि नंबर में भी ज्यादा थे सोल्जर्स, पर फिर भी वो ब्रिटिशर्स को हराने में नाकामयाब रहे। तो उसके बाद क्या हुआ? बेगम हजरत महल एस्केप टू नेपाल। और बेगम हजरत महल बच्चे अपने आप को बचाते बचाते कहाँ पहुंच गए? नेपाल में जाकर उनको शरण लेनी पड़ी। इनके अलावा जैसे हमने लिखना लखनऊ डिस्कस किया, कानपुर किया, झांसी के बारे में किया, दिल्ली, उसके अलावा भी कुछ ऐसे प्लेसेस थे जहाँ पर की घटनाएं घटी थी और काफी लीडर्स ने इसके लिए सपोर्ट किया। अदर इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑल्सो, खान बहादुर खान, इन्होंने कहा लेट किया इस रिवोल्ट को? बरेली। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, आजिमुल्ला खान ने फतेहपुर में, और देवी सिंह ने कहा कि लेट किया रिवोल्ट को? मथुरा में, और कदम सिंह थे, इन्होंने कहा लेट किया रिवोल्ट को? मेरठ में। इलाहाबाद और बनारस में किसने किया? मौलवी लियाकत अली। और बिजनौर में मोहम्मद खान ने किया। आरा कहाँ पर है? सिटी का नहीं है, कहाँ पर? ये बिहार में। मोस्टली ये तो ये पूछा जाता है बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह। वैसे प्लेस अगर सिटी का नहीं पूछ लिया तो आरा। और यहाँ पर किसने किया? कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। ओडिशा में सुरेंद्र शाही एंड
उज्जवल साहिब और कुल्लू में किसने किया, राजा प्रताप सिंह। यानी कि ये इम्पोर्टेंट हमने डिस्कस किया लीडर्स के, इन लीडर्स के साथ बाद में कैसे हुआ, और इसमें हमने ये भी डिस्कस किया कि कौन कौन से ब्रिटिश ऑफिसर्स इसमें मेन थे जिन्होंने इस रिबेल को सप्रेस करने में मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। English authority re-established in India during July-December 1858। यानी कि जो इंग्लिश अथॉरिटी थी उसमें वापस आते आते कौन से मंथ में, जुलाई to दिसंबर के बीच में, और कौन सी ईयर में कैप्चर कर लिया तुम्हारे इंडिया को, 1858। Now we will discuss about what were the causes of the failure of the revolt of 1857। Now we will discuss the causes of failure. Why the revolt of 1857 didn't successful. First, revolt was confined to a limited area. It means the revolt didn't spread all the parts of India together. In only northern and central India it was spread, and most states like Sindh, Punjab, Kashmir, Rajputana and the northeastern states did not take part in the struggle. And in area में northeastern state didn't take part in that struggle. So it means the Sikhs and the Gorkhas, इन्होंने किसकी help की? Help the British. Second point, first point समझ के, revolt was confined to a limited area में, तो mainly you can say that the northern and central India, or other parts were remain. Second, lack of national feeling among the Indians. It means it was not supported by all groups and sections of society. Some were openly supportive of the British and turned the rebels in, like native rulers like Scindia, Holkers and the Nizams, who remained loyal to the British। यानी कि सभी इंडियंस के बीच में क्या नहीं आई थी, नेशनल फीलिंग डेवलप नहीं हुई। जैसे कुछ हमारे नेटिव रूलर्स थे, सिंधिया, होलकर एंड द निजाम्स, हु रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश, वो किसके प्रति ईमानदार बने रहे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। एक क्या था हमारा, लैक ऑफ एबल एंड कॉमन लीडरशिप। एबल लीडर नहीं चूज किया हमने बहादुर शाह सेकंड, उनकी एज ऑलरेडी कितनी हो चुकी थी, 82। तो यानी कि देयर वाज नो प्रॉपर आइडियोलॉजी और स्ट्रेटेजी, हमारे पास ना कोई प्रॉपर लीडर था ना कोई स्ट्रेटेजी थी, which could help the rebels in systematic attack, ताकि हम सिस्टमेटिक ढंग से अटैक कर पाए ब्रिटिशर्स के ऊपर। लैक ऑफ गुड एंड मॉडर्न वेपन्स, इसका मतलब क्या है, द रिबेल्स वर शॉर्ट ऑफ वेपन्स एंड फाइनेंसेस, हमारे पास गुड क्वालिटीज के वेपन्स नहीं थे, एंड देयर मिलिट्री टेक्निक्स वर आल्सो आउटडेटेड, और ब्रिटिशर्स वर यूजिंग द good quality techniques and the good weapons they were using. Lack of proper organizations of the revolt, यानी कि we didn't think about that कि we should make a proper arrangement, यानी कि proper organization should be there of that revolt. Lack of proper organization, lack of coordinations between सिपाहीज, peasants, जमींदार्स and other classes, यानी कि जो हमारे सिपाही, peasants, जमींदार and other classes थे उनके बीच में भी proper coordination नहीं हो पाया। क्यों? सब अपने अपने बेनिफिशियल के लिए लड़ रहे थे, अपने अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे कि उनको ये प्रॉब्लम थी तो हमें ये करना है, उनको ये प्रॉब्लम है तो हमें ये करना है। ये आगे समझ, तो लैक ऑफ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिवोल्ट, यानी कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पर क्या था, रिवोल्ट की वजह से फिक्स डेट तो क्या रखी गई थी, 31 में, ताकि एक साथ सब जगह पहले। पर बैरकपुर छावनी में ऐसा हुआ कि मंगल पांडे ने मना किया, इनफेल्ट राइफल को रिफ्यूज कर दिया, आई विल नॉट यूज, तो उसके बाद वो मेरठ पहुंच गया, मेरठ से दिल्ली। इसी के बीच में ब्रिटिशर्स को टाइम मिल गया कि कैसे इनको, मतलब यहीं पर इनके प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है, तो उस रिवोल्ट को सप्रेस करने में, यानी 1857 रिवोल्ट को सप्रेस करने में इनको काफी टाइम मिल गया, और कुछ हद तक वो सफल भी रहे इसमें काफी। नाउ व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस, द इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द रिवोल्ट ले इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इसका मेन इम्पोर्टेंट एक रिजल्ट ये है कि इसमें क्या दिखाई दिया, इस रिवोल्ट के अंदर हिंदू मुस्लिम यूनिटी दोनों के अंदर एक एकता की भावना दिखाई दी। इट नो डाउट बिगेन एज ब्रिटिश रूल, इट नो डाउट बिगेन्स ए म्यूटिनी ऑफ सोल्जर्स, हालांकि सिपाहियों का एक विद्रोह शुरू हुआ था सोल्जर्स का, but soon turned into a revolt against British rule in general। लेकिन धीरे धीरे अब लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया था। यहाँ तो हम कह सकते हैं कि मेन कारण तो क्या था, क्योंकि सोल्जर्स ने अपोज किया था सिपाहीज ने, तो यानी कि म्यूटिनी ऑफ सोल्जर्स कहा गया, बट सून टर्न, लेकिन धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो गया, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन जनरल। तो इन दैट पैराग्राफ वी हैव डिस्कस्ड कि व्हाट वर द
causes of the failures of the revolt of 1857 and why that revolt was not successful that time. First point we have discussed, revolt was confined to a limited area and that revolt was spread only a particular area, not all over India. Second, lack of national feeling among the Indians and that time Indians peoples were not having the national feelings and native rulers also supported the British. For example, Scindia, Holkar and the Nizam. Lack of able and common leadership and we were not having the good commander, good leadership, and lack of good and modern weapons because Britishers were using the good quality of techniques weapons and we were not having this type of good techniques. लैक ऑफ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिवोल्ट, हमने इसको एक स्ट्रेटेजी बनाकर नहीं लगा, आइडियोलॉजी मन में आए उस हिसाब से रूलर्स ने इसको सपोर्ट किया तो उनका अपना खुद का एक बेनिफिट था। अगर वो सपोर्ट कर रहे थे तो इसका मतलब क्या था, रूलर्स को अपनी टेरिटरीज को बचाने के लिए कर रहे थे। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, सिपाहीज, पीजेंट्स, जमींदार एंड अदर क्लासेस, हमारे जितने भी क्लासेस थी उन सबके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया, तो ये भी एक मेन रीजन रहा। तो सिग्निफिकेंस इसका क्या रहा, इस रिवोल्ट ऑफ 1857 से ये रिजल्ट निकल के आया कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी काफी बन गई हमारे इंडिया के अंदर। और सेकंड क्या हुआ, हालांकि ये म्यूटिनी ऑफ सोल्जर्स के रूप में स्टार्ट हुआ, बिगिन एज ए म्यूटिनी ऑफ सोल्जर्स, लेकिन जाते जाते बाद में किसमें टर्न हो गया, इनटू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलिंग जर्मन। Now we will discuss the nature of the revolt, यानी कि किस तरीके का रिवोल्ट था। Some historians were saying it was a military revolt, someone was saying it was the first war of Indian independence. So we will discuss the point. First view, it was a military revolt. What was the reason behind that, why they were saying it was a military revolt? For the English historian, यानी कि the English historians say that it was a military revolt which was erupted due to the introduction of grease, cartridges. The rumor spread that they contained the fat of cows and pigs. ये rumor फैल गया था कि जो एनफील्ड राइफल जो लागू इंट्रोड्यूस की है ब्रिटिश आर्मी ने, उसके ऊपर कारतूस के ऊपर किसकी चर्बी लगी हुई है, काऊ और पिग की। ये हिस्टोरियन अपना व्यू दे रहे हैं। सो द सोल्जर्स रिवोल्टेड, इसीलिए क्या कह रहे हैं कि इट वाज ए मिलिट्री रिवोल्ट, क्यों है, क्योंकि इसीलिए सोल्जर्स ने क्या किया था, रिवोल्ट किया, विद्रोह किया। एंड English historians like who is saying that was a military revolt? English historians like Sir John Lawrence, Sir James Outram, P.E. Robert. They were saying it was a military revolt and say that this is uprising lacked, or someone is saying say that this is uprising lacked popular support. Only a few rulers took part in it whose kingdoms had been annexed. जैसे लॉर्ड डलहौजी ने एनेक्स पॉलिसीज अडॉप्ट की थी, जो अडॉप्टेड सन करे को मतलब क्राउन नहीं दे रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग जो लिए गए थे, कुछ राजाओं महाराजाओं ने अपने मतलब जो जिसके राज्य हड़प किए गए थे उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी थी। समवन वाज सेइंग annexed by the British. The uprising was confined to a small area. हमने पढ़ा जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है मेनली कौन से पार्ट में, हाँ, नदर्न एंड सेंट्रल इंडिया, कन्फाइंड की लिमिटेड एरिया में ही स्प्रेड हो पाया ये। एंड इट वाज सप्रेस्ड क्वाइट इजीली एंड सच इट वाज नॉट ए पॉपुलर राइजिंग। इसीलिए कह रहे हैं कि इट वाज ए मिलिट्री रिवोल्ट, ये मिलिट्री रिवोल्ट था, ये लार्ज स्केल पर स्प्रेड नहीं हुआ, इसलिए इसको सप्रेस करने में दिक्कत नहीं हुई, यानी कि इजीली इस रिवोल्ट को क्या कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया। तो दैट्स व्हाई दीज इंग्लिश हिस्टोरियंस आर सेइंग, जॉन लॉरेंस, सर जेम्स ओट्रम, पी रॉबर्ट, इट वाज ए मिलिट्री रिवोल्ट। मिलिट्री रिवोल्ट आपको से समझ में आ गया कि क्यों इन्होंने रिव्यू दिया है कि इनफील्ड राइफल जो शुरू हुई थी उसके ऊपर जो कार्ट्रिज लगी थी फैट्स, कुछ ये व्यू बता रहे हिस्टोरियन की ये भी हो सकता है कि उन्हीं रूलर्स ने इसको सपोर्ट किया है जिनके राज्य एनेक्स के ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिए गए थे। और क्यों इसको कह रहे मिलिट्री रिवोल्ट था, क्योंकि इट वाज spread only limited area, mainly in the central and the northern India. Second view what they were saying, first war of India independence. I hope you understand what was the first view of, it was a military war. Second, first war of Indian independence. Second view कहते हैं कि ये तो क्या था, फर्स्ट वॉर था इंडिया, यानी कि इंडिया की आजादी के लिए लड़ा गया पहला युद्ध। और इंडियन राइटर्स लाइक सावरकर, अशोक मेहता, दे आर नॉट एग्री टू दैट पॉइंट, वो इस पॉइंट पे एग्री नहीं है। ये क्या कह रहे हैं कि लाइक सावरकर, अशोक मेहता, कि इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। व्हाई डू नॉट एग्री विद द अबव व्यू, ये ऊपर वाले व्यू पे बिल्कुल भी एग्री नहीं है इस चीज के ऊपर।
They call this uprising the first war of independence. Firstly, they said that this revolt could not have spread so suddenly that it not the people support behind it. तो कह रहे हैं कि अगर ये इतनी जल्दी नहीं फैलता अगर लोगों को इसमें सपोर्ट नहीं होता तो ये भी कैसे. सेकेंडली, इंस्पायर्ड बाय नेशनलिस्ट ideas, both the Hindus and Muslims fought together against the British. इन्होंने क्यों कहा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? क्योंकि इसमें हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर लड़े आजादी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, और वो भी किसके खिलाफ? ब्रिटिश के अगेंस्ट. थर्डली, a large number of people openly supported the soldiers. Large number of people यानी कि they also supported the soldiers in driving out the British from India. ताकि सोल्जर्स के थ्रू ही हो जाए, ताकि हम ब्रिटिशर्स को क्या कर सके, अपने इंडिया से बाहर निकाल सके. Fourthly, people from all walks of life, inspired by the noble ideals of nationalism and independence, supported their rulers against the British. तो यानी कि we have discussed nature of the revolt. First view, it was a military revolt. We have discussed what was the reason behind that, why they were saying it was a military revolt. Second view, first war of Indian independence. Indian writers is saying Savarkar and Ashok Mehta, etc. So we have discussed both these points, first and second views. I hope you understand. Now we will discuss the impact of the revolt of 1857. Impact of the revolt of 1857. अब हम ये देखेंगे कि इस रिवोल्ट का क्या इफेक्ट हुआ. And that time who was the Governor General during that revolt? Lord Canning. Lord Canning was the Governor General. He gave one idea, suggestion. One act should be passed according to that what? In August 1858, one act was passed by the British Parliament. इसमें मेनली टू इम्पोर्टेंट सजेशन दिए इन्होंने. क्या चेंजेस आए टू इसकी वजह से? विच पुट टू एन एंड टू द रूल ऑफ द कंपनी and the control of the British government in India was transferred to the British Crown. British Crown का मतलब क्या? British Queen, Emperor के पास चला गया, Empress के पास, Emperor के पास वहां पर. तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो एक्ट बना 1858 के अकॉर्डिंग क्या हुआ? ये क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका रूल इंडिया के अंदर कब खत्म हुआ? 1858 में. और कौन से एक्ट के थ्रू? 1858 एक्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू. विच पुट टू एन एंड टू द रूल ऑफ द कंपनी और द कंट्रोल. अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रूल था इंडिया के अंदर, अब वो किसके हाथों में ट्रांसफर कर दिया गया? ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश क्वीन के हाथों में. सेकंड, पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंडेड. पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? लॉर्ड कैनिंग. इनकी पोस्ट को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया. एंड पोस्ट ऑफ वॉइसरॉय ऑफ इंडिया स्टार्टेड. और जो वॉइसरॉय की जो पोस्ट थी वो क्या कर दी गई? स्टार्ट कर दी गई. ये क्वेश्चन बन सकता है कि हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? लॉर्ड कैनिंग. और ये फर्स्ट आ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया? दैट वाज द सेम आंसर, लॉर्ड कैनिंग. क्लियर? बोथ टू पॉइंट्स. यानी कि अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1858 क्या हुआ? जो ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट पास हुआ उसके अंदर जो रूल ऑफ द कंपनी था उसको क्या कर दिया गया? एंड कर दिया गया. और जो रूल था ब्रिटिश इंडिया का, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया का रूल करने का जो सिलसिला था किसके पास ट्रांसफर कर दिया गया? ब्रिटिश क्वीन के पास. सेकंड, जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी उसको एंड कर दिया गया और कौन सी न्यू पोस्ट लागू कर दी? वॉइसरॉय ऑफ इंडिया. तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हु वाज गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? लॉर्ड कैनिंग. एंड देन हु वाज द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग. नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड पॉइंट. The British persuade the policy of divide and rule. अब ब्रिटिशर्स ने क्या एक पॉलिसी अडॉप्ट की? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. अब उन्होंने देखा कि जो 1857 रिवोल्ट है उसमें हिंदू और मुस्लिम्स एक साथ होकर लड़ाई लड़ते हैं, मतलब रिवोल्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ, ताकि ये यूनिटी फ्यूचर में नहीं बन पाए. तो इसलिए उन्होंने क्या किया? हिंदू को उनके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और मुस्लिम को हिंदुओं के खिलाफ, आपस में यानी कि दोनों रिलीजन को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया. ताकि तो इसीलिए उन्होंने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की इंडिया के अंदर रूल करने के लिए? डिवाइड एंड रूल. ताकि हिंदू और मुस्लिम्स एक साथ आकर लड़ाई नहीं लड़े, रिवोल्ट नहीं करें कोई आगे से. फोर्थ पॉइंट, ब्रिटिश क्रिएटेड द कंसेप्ट ऑफ मार्शियल एंड नॉन मार्शियल रेसेस. अब ब्रिटिशर्स ने एक न्यू कंसेप्ट और शुरू किया, मार्शियल एंड नॉन मार्शियल रेसेस. जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया था, जिस एरिया के लोगों ने, उनको तो किस में रखा उन्होंने? मार्शियल रेसेस में. जैसे द सिख, पठान्स एंड द गोरखास हेल्प द ब्रिटिश टू सप्रेस द रिवोल्ट. यानी कि रिवोल्ट को सप्रेस करने में इनकी हेल्प की.
तो दे काउंटेड इन द मार्शियल रेसेस, और जो मार्शियल रेसेस में तो उनको क्या बेनिफिट हुआ, दे रिक्रूटेड इन द आर्मी इन द लार्ज नंबर, यानी कि इनको आर्मी में ज्यादा लेवल पर भर्ती किया गया। इनको द सिख, पठान्स एंड द गोरखास, क्यों, क्योंकि इन्होंने इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में किसकी हेल्प की थी, ब्रिटिशर्स की। सेकंड, नॉन मार्शियल रेसेस, नॉन मार्शियल रेसेस में किसको रखा गया, वेयर द रिवोल्ट वाज स्ट्रांगली, जहां पर रिवोल्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लाइक अवध, बिहार और स्पेशली इन सेंट्रल इंडिया एंड नदर्न इंडिया, इन एरिया में। तो यहाँ पे क्या किया गया, हियर पीपल वर नॉट रिक्रूटेड, यानी हियर पीपल वर नॉट रिक्रूटेड इन द आर्मी। अलग कहते भी तुम लोगों ने हमें तो सपोर्ट नहीं किया, इसलिए हम तुम्हें आर्मी में भर्ती नहीं करेंगे। वी नो सिख, पठान एंड गोरखा ने हमें सपोर्ट किया है, इसलिए क्या करेंगे, इनको हम आर्मी के अंदर ज्यादा से ज्यादा भर्ती करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द फिफ्थ पॉइंट, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। A cabinet rank ministers was appointed टू मैनेज द अफेयर्स इन इंडिया, यानी कि कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स अपॉइंट की गई इंडिया के अंदर टू मैनेज द अफेयर्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जो भी काम काज होगा उसको देख रेख करने के लिए कैबिनेट रैंक बनाएगी। वो किसके रिस्पॉन्सिबल मानी गई, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी गई। एंड वॉज कॉल्ड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ही वॉज टू बी असिस्टेड बाय एन एडवाइजरी बॉडी कॉल्ड द इंडियन काउंसिल। Dear students, our topic the revolt of 1857 completed. In the previous video we have discussed some points. Today we have discussed many important points. So I request to all the students, please pause both the video very carefully and learn and write all the important points in your notebook. And after that you will learn also where the British officers suppressed the revolt and who were the main leaders in our country, in India, supported. Particular you will learn the place name also, even leader name also, and even date also you will remember. You will learn all the reasons, what were the reasons behind that, who started the revolt and at which place. So I hope you will learn and write all the important points. Thank you.